Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we are gonna discuss about firstly few string methods and then the array methods. We have many array methods, which we use in our. One second, we have it on a different table actually. Table क्या? Array methods जो हमारे पास है, for example, we want to build some e-commerce website. Okay, in the e-commerce website we have a lot of stuff to do, like filtering, like we reduce something, we search, we do a lot of stuff, and that comes in the array methods. We talk about them right now. We do few couple of string methods, then we switch on to the arrays. Okay, then from tomorrow maybe we talk about some advanced topics of the JavaScript. Now for example, you have a string. For example, I say let str equals to Junaid is teaching, maybe has aid, paid aid. I'm just putting up some aids here. Many aids here. Aid, AID here, AID here, AID here, and I give it a go. And oh, it's this thing. One second. Enter. Now if you say str, it's gonna be having the same stuff. Now if I want to find the aid in this string, so then we have what's called as the search. So I can say str dot, if I say p equals to str dot search, then I can say here aid. Okay, and give it a go. So it's telling me 3. If I say p is also telling me 3. That means this string dot search is returning. That is the point, that this string dot search here, it is returning where is the AID. So it is 0 here, this is 1, this is 2, and at the 3 we got the 8. You got the first instance of aid, that is the 3 here, right? That's the one thing. Now next thing is that if I do the same thing but I use the regular expression format, which is doing these forward slashes, and it will work same way, because you have to put into the search some regular expressions. You can do complicated search using the regular expressions we have learned last time. Okay, now maybe you want to talk same thing, but you are telling me that give me the capital AID, where the capital A was there. So it's telling me it's at the 20th position, that's here. Okay, but if I tell him the same thing, but I will make it case insensitive by saying I, then it will get back that it's immediately write capital or write small, because it's case insensitive now. So it will start from searching from the beginning, and it stays here only at the 3rd position. Okay, now we have another better way of doing the same thing, which is using the match. Okay, I can say here, say for example, p equals to, now I say, what was my string name? Str perhaps, huh? Str, yeah. I say p equals to str dot match. Okay, and I'm saying the same thing, AID in it. Okay, in the regular expression way, or in the double quotes or single quotes, whatever you like to call it. But the thing is that it will return an array. That's important. Now if I say p here, it is, this match returns an array. Your search was returning only the index where that aid is in this string, where is that part of the string which you're trying to find. But the match returns the full array. It returns the value, whatever you are searching. It returns on what index it is, and it is returning the string. Okay, on which the search was performed. So this is the match. Okay, and if you do one thing in the match, you can do also command K, that if I do one thing, that I am saying string dot match, then I am putting up here the G, that is the global, and it will do what? It will see all the
instances of aid. The match or the search, they were seeing the first instance कि aid कहाँ पे था. लेकिन यहाँ पे G से क्या हो जाएगा कि ये बता रहा है कि 3 जगह पे मेरे पास aid है ना, 0 1 2. लेकिन अगर मैं इसको एक चीज़ बताऊंगा कि भाई साहब आप जी भी करो और केस इनसेंस्ड भी करो, यानी कि ए आई डी जो है अगर कैपिटल में भी कहीं पर है उसको भी फाउंड करो, तो ये लास्ट वाला भी ए आई डी जो कैपिटल है वो भी फाइंड करके लाएगा. ठीक हो गया. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज दिस इज द ग्लोबल. अगर अगर आपके पास ऐसी आपने स्ट्रिंग इसको भेजी जो कि वहाँ पे थी नहीं, say for example I'm talking MMM and it will tell me null that it is not there, right, if the match is not found. Similarly, like we said like this, p.str match gi, okay, command v here, I can write this thing using the match all. We also have the match all, okay. I can say here for example match all means match all the stuff. You don't have to put up the GIR, you just put up there whatever you want to find AID, it will match everything, okay. And when I press it enter, there is some issue. What is the issue here? One second. If I put up like this AID, okay, give it a go. Yes, now it's giving me, but what is it giving? It returns an iterator. That is the difference. The match all, it returns an you see it's a reg expression string iterator, okay, which has that next and all. So that means if you have to access the p, now see what is in a p, it will definitely have the same output which this guy gave us. It gave us the match of G means global, means all the matches. Say for example AID is here, okay, and global and case insensitive and all, but if I remove the case insensitive, this guy will do the same job as done by this guy. That means ये सारे के सारे जितने भी मैचेस AID के आते हैं कमांड के, जो मेरा अब ये P है, लेकिन अगर मैं ये P को पढ़ूंगा लेकिन वो बताएगा कि भाई ये रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग आइटरेटर है, तो ये ऐसे आपको एग्जीक्यूट. अब इसमें कैसे देख सकते हो, इसमें दो तरीके हैं. या तो आप इसमें स्प्रेड ऑपरेटर लगा लो P को, ठीक है, तो ये बताएगा इसमें 3 चीज़ें हैं, 3 एरेज हैं कि AID 0 पे है, फिर 1 पे है, फिर 2 पे है एंड सो ऑन. और या आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हो, यूजिंग द नेक्स्ट, है ना. इफ आई से p डॉट नेक्स्ट, ओके, now it is giving me the first value. Done is true, but the thing is that it has been, हमने इसको स्प्रेड ऑपरेटर से इस्तेमाल किया हुआ है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, अब दोबारा नहीं पढ़ सकते इसमें, बिकॉज मैंने कहा था कि जो स्ट्रिंग आइटरेटर होता है इट इज़ वन टाइम यूज ओनली. सो इट इज़ डन इज ट्रू, तो ये कुछ नहीं दिखा रहा है, अनडिफाइंड दिखा रहा है, लास्ट चॉइस दिखा रहा है क्योंकि इसका डन ट्रू है. तो ये फिर से रन करना पड़ेगा, उसके बाद नया बनाना पड़ेगा, तो फिर वो p डॉट नेक्स्ट करके वो पढ़ा जाएगा. इज दैट क्लियर? हाँ जी. यस सर. ठीक हो गया. नाउ ये हमारा ये जो हमारे थे ये दिस वर आवर यू नो द स्ट्रिंग मेथड्स. इसमें और भी बहुत सारे स्ट्रिंग मेथड्स हैं विच यू कैन सी योरसेल्फ. आई थिंक दीज आर एनफ, वी हैव रेड लॉट ऑफ. नाउ वी मूव ऑन टू द एरे मेथड्स. वी मूव ऑन टू व्हाट? एरे मेथड्स. हमारे पास जो एरे मेथड्स हैं उसमें पहले ही जो आपकी एरे है, जो आपकी एरे है, इसको आप इंसर्ट कर सकते हो आगे भी और पीछे से भी. इसको आप डिलीट कर सकते हो आगे से भी और पीछे से भी. और अगर आप बैक साइड से यू नो यू आर डूइंग, दैट्स कॉल्ड अ पुश एंड पॉप. यू कैन डू द पुश एंड पॉप टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट द एंड एंड टू डिलीट एन एलिमेंट एट द एंड यू यूज पॉप. इसी तरीके से टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन द बिगिनिंग वी यूज शिफ्ट टू डिलीट एलिमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड अनशिफ्ट टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट द बिगिनिंग. ठीक है, पहले इस चीज़ को हम देखेंगे. ये बेसिक ऑपरेशंस है आपके एरे का. यानी कि थर्ड पार्टी कुकीज़ देखना पड़ेगा मुझे, ये क्या मसला हो रहा है बार बार कमांड के. एनीवेज, दैट मीन्स कि आई एम सेइंग फॉर एग्जाम्पल आई गॉट एन एरे AR equals to, I am saying 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6 comma 7 comma 8 and so on. This is my array. Now I want to say for example if I want to remove an element from the beginning, then I can say
AR dot shift. If I do AR dot shift, it's a method. So what will happen here is, now if you chuck the array AR, पहला जो था इसमें 1 वो ख़त्म हो चुका है. नाउ इट्स टर्निंग 2, यानी कि AR डॉट शिफ्ट ने रिमूव किया एलिमेंट बिगनिंग से. अगर मैं कहूँगा AR डॉट पॉप, ओके, and you chuck on the pop will work on the back side, so 8 will be gone. Now you see it is telling me it's returning the 8 value, and if I chuck on the my array, now 8 is gone on the back. Command K, ओके. नाउ यू सी जो 8 पीछे था वो ख़त्म हो गया, यानी कि पॉप ने पीछे से रिमूव किया और शिफ्ट ने आगे से रिमूव किया. ओके. नाउ इफ़ यू से पुश AR डॉट पुश फॉर एग्जांपल, और मैं चाहता हूँ कि मैं यही 8 वापस दूँ इसको, ठीक है ना. नाउ इट इज़ गिविंग मी द इंडेक्स. इफ़ आई चक ऑन द AR, नाउ 8 हैज़ एंटर्ड इनटू इट एट द इंडेक्स 7. सो इसने 7 इंडेक्स दे दिया यहाँ पे और बताया कि कौन कहाँ पे आपने पुश किया हुआ है. ठीक है. इसी तरीके से अगर आप अनशिफ्ट करोगे AR डॉट अनशिफ्ट, ठीक है ना, और आप कह रहे हो कि भाई साहब मेरे को 12 चाहिए. अब ये 12 कहाँ पे लगाएगा, तो इसने बताया कि कुल साइज़ कितना है आपके एरे का. 8 आ गया, पहले 7 था, अब 8 आ गया. लेकिन अगर आप AR को देखोगे, सो 12 हैज़ कम इन द फ्रंट. ठीक है, कमांड के. तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास एक एरे है, ठीक है ना, इस एरे का अगर आप यहाँ से इंसर्ट करना चाहते हो, यू यूज़ अनशिफ्ट. ये मेथड्स सारी, ये एरे मेथड्स हैं. दीज आर एरे मेथड्स, जिसमें हमने एक देखा हुआ है फॉर ईच. ठीक है, फॉर ईच हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो वो भी एक एरे मेथड था. तो ये भी एरे मेथड्स हैं, तो इसके पेरेंट्स और लाजमी. अगर आप पीछे से इंसर्ट करना चाहते हो, देन यू से पुश. इसी से आप आगे से अगर आप डिलीट करना चाहते हो, यू यूज़ शिफ्ट. और अगर आप पीछे से डिलीट करना चाहते हो, यूज़ पॉप. तो ये याद रखें आप, पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट. ठीक हो गया, क्लियर? हाँ जी. Yes, sir. Yes, इसी sir. तरीके से अगर आप मेरे पास एक अगर मेरे पास 2 एरेज हैं और मैं उनको कॉन्कैटनेट करना चाह रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ, कॉन्कैट. सो आई हैव व्हाट्स कॉल्ड ए कॉन्कैट ऑपरेटर. ओके. लेकिन इसमें जो आपके ओरिजिनल एरे हैं उस पर कोई काम नहीं होगा. ये रिटर्न करेगा कॉन्कैट, लेकिन आपकी ओरिजिनल, जैसे आप मेरे पास एक एरे है AR2 में कहूँगा इसको फॉर एग्जांपल, इसमें मेरे पास कुछ नाम है. ठीक है, आई एम सेइंग जुनी एंड आई एम सेइंग इफ़ी. आई गॉट कपल ऑफ नेम्स हियर इन माई AR2. व्हाट्स हैपनिंग, अच्छा मैंने ये गलत किया, इसको लॉन्ग ब्रैकेट लगाना था. ठीक है ना. नाउ आई गॉट AR3 जिसमें और मुझे नाम है, मे बी आई से जुनैद एंड आई से मुत्तकी. ओके. नाउ इफ आई से हियर AR4 इक्वल्स टू, मैं कह रहा हूँ AR2 पे मैं लगा रहा हूँ मेथड दैट्स कॉन्कैट, और इसको मैं पास कर रहा हूँ AR3. कॉन्कैट को मैं पास कर रहा हूँ AR3. ठीक है ना. तो जो AR4 है उसमें वो दोनों एरेज का जो है वो कॉन्कैट होके इसमें आ गई हैं AR4 में. लेकिन AR2 जो आपकी है वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. AR3 में कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है, AR2 भी सेम है, AR3 अपनी सेम है, लेकिन AR4 जो आपको बनी वो कॉन्कैट होके उन्होंने दोनों का ये कर दिया. ठीक हो गया, सिंपल. एक और मेथड होता है दैट्स कॉल्ड इंक्लूड. अगर मुझे देखना है कि कोई चीज़ इस एरे में है कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं AR4 में देखना चाहता हूँ, AR4 डॉट इंक्लूड्स है मगर, नॉट इंक्लूड. मैं चाहता हूँ कि मैं देखूँ क्या इसमें मुत्तकी है कि नहीं है. ठीक है, आई वांट टू फाइंड दिस थिंग इन इट, सो इट्स टेलिंग मी ट्रू बिकॉज इट इज़ देयर हेयर एज यू कुड सी. सो इंक्लूड से हम देखते हैं कि क्या इस एरे में कोई चीज़ है कि नहीं. ठीक है. इफ़ आई डू AR4 डॉट रिवर्स, ओके, तो इससे अगर मैं AR4 चेक करूँगा अभी, तो इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ी. ठीक है ना. इसको क्यों नहीं पड़ी फ़र्क कुछ. अच्छा, रिवर्स में मैंने पेरेंट्स नहीं दिया. I have to say AR4 dot reverse. Okay, now you see it is being reversed. The original array, it works on the original array
एंड इट्स बीइंग रिवर्स। अगर आपको रिवर्स एरे करनी है तो आप रिवर्स लगाएं। अगर आपको सॉर्ट करना है, यू कैन से AR.SORT सॉर्ट, पेरेंथेसिस लगाएं क्योंकि दीज द मेथड्स। नाउ अच्छा AR नहीं था मेरे, ये कौन था, AR4। इफ आई से AR4.SORT sort, okay, now you see it is sorted in the alphabetical order, not dictionary order. Uh, but the thing is, as you could see here now, this is the capital J and this is small j. What is happening here? So इसने J और ये J यहाँ पे लगा दिया और ये J यहाँ पे लगा लिया। कैपिटल वालों का इसने प्रॉपर किया IJM, है ना, डिक्शनरी ऑर्डर, लेकिन स्मॉल j का नहीं किया। इसका मैं समझाऊंगा। जैसे अभी अगर मेरे पास एक एरे है, लेट इट बी A इक्वल्स टू, मेरे पास एक एरे है, इसमें है फॉर एग्जांपल 12, फिर है 1, फिर है 200 फॉर एग्जांपल, फिर है 2, फिर है 300, फिर है 3, फिर है 45, फिर है कुछ 6 7 6 5 whatever, ओके। नाउ ये मेरी A एरे है ना, कमांड K। अगर मैं A को देखूंगा तो इसमें इस तरह से है। अब मैं इसको सॉर्ट करूंगा, आई एम सेइंग A.sort, ठीक हो गया। नाउ व्हाट विल हैपन हियर, एज यू कुड सी हियर, इसने 1 लाना था, फिर 2 लाना था, फिर 3 लाना था, फिर 5 6 7 इस तरीके से काम करना था। लेकिन इसने इस तरीके से काम नहीं किया। इसने क्या किया काम, इसने 1 पहले लाया, फिर 12 जो 1 कैटेगरी में आता है वो 12 आता है, 1 जिसके आगे है, तो फिर 12 यहाँ पे लाया, फिर 2 लाया इसने छोटा वाला, फिर 2 कैटेगरी में 200 है वो लाया, फिर 3 कैटेगरी में, क्यों, क्योंकि ये सॉर्ट करता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, लेकिन बट इट डज इट ऑन द बेस ऑफ UTF-16, जो आपका UTF यूनिकोड जो मैंने आपको बताया था 16 बिट, बिकॉज वी नो इन जावास्क्रिप्ट ईच एंड एवरी कैरेक्टर, whatever this number, it is character or whatever it is, they are stored in a 16 bit, when they print it, or when we work on the characters, basically they work on the UTF patterns. UTF is the Unicode transformation format, Unicode transformation format. So उस हिसाब से हर एक का अपना जो है, अगर आपने यहाँ पे अभी मैंने देखा वो क्या नाम था उस एरे का, STR4 शायद है, डिलीट दिस, इट वाज लाइक STR4, STR भी हमारे पास है, नहीं ये तो स्ट्रिंग हो गया। हमारे पास एरे क्या थी, इसका नाम क्या था, एरे का नाम क्या था हमारे पास, AR4, हाँ AR4 हमारे पास था। देखिए ये देखिए, इसमें इसने जब सॉर्ट इसने किया, इसमें कैपिटल I और F एंड I, वो जो कैपिटल I है उसका यूनिकोड स्मॉलर है देन द, जैसे ये J है, जो कैपिटल J है उसका यूनिकोड स्मॉलर है देन द स्मॉलर J, ठीक है। अगर आप यूनिकोड चेक करोगे, यूनिकोड चार्ट जो मैंने पिछली बार दिखाया था, उसमें देखोगे कैपिटल J का यूनिकोड जो है वो स्मॉलर है एज कम्पेयर टू द स्मॉलर J, सो इट कन्वर्ट्स इनटू यूनिकोड्स फर्स्ट, और जिसका नंबर छोटा आ रहा है तो वो ये असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है, जिसका भी नंबर छोटा छोटा आ रहा है, सो इट इज़ डूइंग इट इन असेंडिंग ऑर्डर। यू गॉट दिस पॉइंट नाउ? Yes, sir. ठीक है ना। तो ये जो जुनैद है, इसका जो असेंडिंग ऑर्डर में जो इसका नंबर आएगा यूनिकोड के अंदर वो छोटा आएगा एज पर द जुनी, तो दैट इज़ वाई इट इज़ पुट अप इट हियर, क्योंकि कैपिटल्स का जो है वो छोटा आता है, ठीक है, ठीक हो गया। सो ये आपका सॉर्ट था। इसी तरह से आपको इंडेक्स ऑफ जो हमने वहाँ स्ट्रिंग में किया था, यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँगा फॉर एग्जांपल इंडेक्स ऑफ मैं कहूँगा फॉर एग्जांपल जुनी, मुझे जुनी का इंडेक्स ऑफ बताओ भाई, जुनी किस इंडेक्स पे है, तो इट विल टेल मी एट 3 लोकेशन 0 1 2 3, ठीक है, जो हमने किया था उसमें स्ट्रिंग्स में। ओके, सॉर्ट भी हो गया, रिवर्स भी हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ था कॉल्ड स्लाइस एंड सप्लाइस, ये दो चीज़ें हैं, स्लाइस एंड सप्लाइस कमांड के। एक हमारे पास स्लाइस है, एक स्प्लाइस है। स्लाइस वैसे ही जैसे हमने किया था, जैसे मेरे पास मैं कहूँगा AR4 डॉट स्लाइस, और मैं कहूँगा भाई तू मुझे क्या काम कर, सेकंड इंडेक्स से शुरू कर और मुझे बता उसमें क्या आएगा।
नाउ यू सी, अगर मैं AR4 देखूंगा, AR4 उसमें हमारे पास ये थे, लेकिन 0 इंडेक्स, दिस इज सेकेंड इंडेक्स, ओके। सो 0 1 एंड 2, 2 इंडेक्सेस मुत्तकी, सो इसने 2 से शुरू किया एंड तक। अगर मैं इसको कहता सेम थिंग कि स्लाइस कर, तो 1 इंडेक्स से कर, और फिर मैं एंड भी इसको बताता था तो 4 तक कर, ठीक है, 1 to 4। सो 0 1, 1 इज़ जुनैद, 2 इज़ मुत्तकी एंड 3 इज़, अगर मैं कहता इसको यहाँ पे कमांड के ये मेरा AR4 है, मैं इसको कहूँगा AR4 डॉट स्लाइस, और उसके बाद मैं इसको कहता कि भाई तू 1 इंडेक्स से शुरू कर और 3 तक, ठीक है, 1 to 3। तो अब देखो ये 1 0 1 दिया इसने, एंड 3 इज एक्सक्लूडिंग, 1 इज इंक्लूडिंग। सो 0 1 1 जुनैद से शुरू किया, एंड फिर 2 दिया इसने मुत्तकी, और 3 इसने एक्सक्लूड किया, यानी कि लेस देन 3, यानी कि 1 to 3 है, लेकिन 3 इज एक्सक्लूडेड, 1 इज इंक्लूडेड, ठीक है, बात समझ आ रही है। यानी कि 1 जो है, क्या किया मैंने यहाँ पे, जो कमांड है, जो ये 1 है ये वहाँ से शुरू करेंगे, इंडेक्स इज 0, इंडेक्स इज 0 1 2 एंड 3। दिस 3 इज एक्सक्लूडेड, ये इंक्लूड नहीं है, लेकिन आपका जो ये 1 है ये इंक्लूड है, यानी कि 1 से शुरू करेगा और 3 नहीं लेगा इसमें, 1 से 2 तक करेगा, ठीक हो गया। कमांड की ये रहा आपका व्हाट्स कॉल्ड एज एन स्लाइस, ओके। इसी तरह से मेरे पास है स्प्लाइस, ओके। बट what splice does is it removes 2 elements, जैसे AR4 मेरे पास है, इसमें ये है, इफ आई से AR4, ठीक है, डॉट स्प्लाइस, SPLICE स्प्लाइस, और उसके बाद मैं इसको कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 2 comma 1। so what will happen, it removed 0 1 2, it removed the second element, okay. And if I chuck my array AR4, okay, now AR4 doesn't have the muttaki in it, so it will remove whatever you specify here, whatever you specify in the splice, that will be removed from the array, okay. It removes the things, and it can also replace command A, command K, replace it. Say for example we got an AR equals to Juni Iffy, maybe I got the next one called Mickey. हाँ जी, आपको समझ आ रहा है? Everybody getting? Yes, sir. Yes, sir. Yes. We got Lily, and the last one obviously is the silly. Okay, now we got these guys, and I am saying AR dot splice, अब मैं splice कर रहा हूँ इसको, और मैं कह रहा हूँ इसको जो आपका इंडेक्स है ना 2, वहाँ से तू शुरू कर, ओके। और कितना चलेगा तू, यानी कि एंड कहाँ पे करेगा तू, ठीक है ना, एंड करना तू से फॉर एग्जांपल 0 1 2, 1 से शुरू करेंगे हम, 1 से शुरू कर तू 3 तक चल, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको कह रहा हूँ, अगर मैं पहले 1 से 3 तक करूँगा, और उसके बाद मैं लेकिन एक चीज़ कर रहा हूँ कि मैं नाम भी दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ जुनैद, ओके, एंड आई एम सेइंग मुत्तकी, ऑब्वियसली डबल कोट्स में, क्योंकि अगर मैं खाली ये दूंगा 1,3, इट विल रिमूव दिस मच ऑफ फ्रॉम दिस एरे, राइट, बट आई एम पुटिंग अप द रिप्लेसमेंट ऑल्सो, बट आई एम टेलिंग यू डिलीट, and in fact if I create here some array here, as maybe result RSLD equals to whatever is you are deleting, that is also putting up into that result array. लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप डिलीट ही नहीं खाली कर रहे हो, आप ना इसमें रिप्लेसमेंट भी भर रहे हो, और अगर आपने बहुत सारी रिप्लेसमेंट कर दी यहाँ पे, वो सारे भी ऐड होते जाएंगे, अगर आपके पास उतना चीज़ें नहीं थी, ठीक है ना, वो सब की सब ऐड होती जाएंगी, ठीक है। यानी कि अगर आपका नंबर यहाँ पे कम ही था और यहाँ पे आपने 10 रिप्लेसमेंट की, वो सारी की सारी ऐड होती जाएंगी, और ये जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट में आ गया जो आपने रिमूव किया, ठीक है, और जो आपका ओरिजिनल एरे है दैट इज़ AR, उसमें आपकी रिप्लेसमेंट्स 1 से मैंने कहा था, यानी कि 0 1 यहाँ पे जुनैद लग गया,
मुत्तकी लग गया, फिर ये लग गया, और फिर सिली अपना रह गया, ठीक है। और अगर मैंने एक्स्ट्रा भी भरा होता, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा भरा होता, वो सारे एक्स्ट्राज यहाँ पे आ जाते, ठीक हो गया। सो इट रिप्लेसेस। हाँ जी, ये क्लियर है इतना? Yes, sir. Okay, now we move on to the very important methods of the array methods, which are used for our, like we have e-commerce website development and all, वहाँ पे हमें ये बहुत ज़रूरत लगता है। Then close the door. Now look here what I'm saying कि फॉर ईच जो मैंने आपको पढ़ाया, फॉर ईच के ही brothers I could say we have, which I could say these are the tools for e-commerce website development, जो हमें e-commerce website development में बहुत ज़्यादा लगेंगे। वो फॉर ईच के ही ब्रदर्स, यानी कि फॉर ईच जो मैंने बताया कि फॉर ईच एक मेथड है जो किसी एरे पे लगेगा, ठीक है ना। और जो यहाँ पे आप इसमें काम करोगे, व्हाट फॉर ईच डज इज इट इन्वोक अ फंक्शन, it invokes a function on each and every element of an array। जितने भी आपके एलिमेंट एरे के अंदर है, ए बी सी डी, जो भी आपके एलिमेंट के एलिमेंट्स आपके यहाँ पे हैं, उन सब के ऊपर ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगी, है ना। सो जो आपका फॉर ईच है, इट विल डज व्हाट इट डज, वन सेकेंड, कमांड की जो फॉर ईच आपका है, ये एरे के हर एक एलिमेंट पे, यानी कि जब आपने फॉर ईच लिखा तो यहाँ पे एक कॉल करनी है आपको फंक्शन को, जो हमेशा के लिए कॉल हो जाएगी हर एलिमेंट के लिए, है ना। जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, पहले इस एलिमेंट के लिए ये फंक्शन कॉल होगी, ठीक है ना। और जो उस फंक्शन का वैल्यू है, और तीन चीज़ें आपके पास होंगी, एक इसका इंडेक्स, एक इसका वैल्यू, है ना। पहले वैल्यू क्या था इसका, उसका इंडेक्स क्या था उस डब्बे का जिसमें वो बंदा था, और पूरी की पूरी एरे, ये तीन चीज़ें आपको पास हो जाती हैं उस फंक्शन को, और फिर वो फंक्शन आपने कहीं लिखी होती है, ठीक है ना, और वो फंक्शन फिर एग्जीक्यूट होती है, ठीक हो गया। ये दिस इज़ द फॉर ईच डूइंग। और इसी फॉर ईच के ब्रदर्स हैं जो कि डिफरेंट थोड़ा सा काम करते हैं, और फॉर ईच एक काम के लगता है, लेकिन हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे फॉर ईच लंबा पड़ जाएगा, और हम चाहते हैं कि हमारे पास एफिशिएंसी आ जाए। उसमें पहला ही हमारे पास है व्हाट्स कॉल्ड एज ए मैप, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है फिल्टर। ओके, मैप है, फिल्टर है, और हमारे पास है रिड्यूस। ये तीन मेथड्स हमारे पास है, जो मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस, ये फॉर ईच के ही जैसे हैं। हर एरे के बॉक्स के ऊपर फंक्शन कॉल होगी जिस तरह फॉर ईच ने किया था, और तीन चीज़ें पास हो जाएंगी, आपका डेटा जो इसमें वैल्यू था, इसका इंडेक्स क्या था, और पूरी की पूरी एरे। ये तीनों चीज़ें जिस तरह फॉर ईच में थी वैसे ही यहाँ पर भी है, ठीक है ना। वो भी इस, चाहे मैप करो इस्तेमाल, फिल्टर करो आप इस्तेमाल, या रिड्यूस करो इस्तेमाल, लेकिन फ़र्क क्या है वो समझते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट आई एम सेइंग? हाँ जी, Yes, sir. आर यू गाइस विद मी? Yes, sir. ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग नाउ इज़ कि मैं पहले मैप देख लेता हूँ, ठीक है ना। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक अभी मैंने देखा ना, ये हमारे पास था ये क्या नाम है इसका, एरेज थी हमारे पास, क्या नाम था उसका, ए आर था, ए आर हमारे पास एरे है, ठीक है ना। वी गॉट एन एरे। मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें जो है ना सारे कैपिटल बना दूँ। अगर मैं फॉर ईच से करूँगा इसमें, इफ़ आई डू फॉर ईच से, हम फॉर ईच से भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। सो हाउ आई डू दैट, आई कैन से ए आर डॉट फॉर ईच, ओके, ए आर डॉट फॉर ईच। उसके बाद मैं कहूँगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि पहले यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन होगा, लगानी पड़ेगी, जैसे मैंने उसका नाम रखा फन, फिर उसको कॉल होगी, फिर फंक्शन डिफिनीशंस वगैरह वगैरह करनी है ना हमें, तो हम शॉर्ट में करते हैं ना यूजिंग द एरो मेथड, ठीक है ना। Yes, sir. ठीक है, जो हम एरो लगाते हैं, लेकिन होता क्या है कि फॉर ईच आपने कहा और यहाँ पे आपने लगाई एक फंक्शन, फिर वो फंक्शन जो आपने यहाँ पे फंक्शन लगाया, वो फंक्शन डिफिनीशन आप करोगे फंक्शन फन, ठीक है ना। और उसके बाद
उसमें कोड लिखोगे वो सारा, और यहाँ पे पकड़ोगे वो डेटा वगैरह जो भी आपको पकड़ना है, जो आप पास हो रहे हैं, क्योंकि 3 चीज़ें पास हो रही हैं, वो तीनों चीज़ें आप यहाँ पकड़ सकते हो, एंड सो ऑन। फिर रिटर्न कर रहे हो आप या कुछ भी कर रहे हो आप, वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन एरो फंक्शन क्या करता है काम? एरो फंक्शन, ये फंक्शन कॉल हटा देता है, ये फंक्शन नेम हटा देता है, ठीक है ना, और ये फन जो इसका नाम लिखा वो भी हटा देता है। सिंपली ये ब्रेस रखता है ना, ये ब्रेस रखता है वो। यानी कि यहाँ देखें आप, जो फॉर ईच है, पहले आपने कॉल की फंक्शन को, फन को, फिर फंक्शन आपने लिखा और लिखा फन, उसके बाद चीज़ें पकड़ी, डेटा था या 3 चीज़ें हम पकड़ सकते हैं, फिलहाल मैं एक चीज़ पकड़ रहा हूँ, दैट इज़ द डेटा इन दैट एरे। यानी कि एरे में जो डेटा है, जो जैसे 11 है, जैसे यहाँ पे पहले जुनी है तो पहले जुनी आ जाएगा यहाँ पे इस डेटा में, एंड सो ऑन। फिर जुनैद, दूसरी बार जुनैद जाएगा, तीसरी बार मुत्तकी आ जाएगा, चौथी बार ये आ जाएगा, फिर सिली आ जाएगा, एंड सो ऑन। और उसके बाद हम यहाँ पे काम करते हैं जो भी करना है और रिटर्न करते हैं वट। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कॉल ना करूँ, मैं फंक्शन ना लिखूँ, और मैं जो ये यहाँ पे नाम है फंक्शन का वो भी ना करूँ, सिर्फ ये ब्रेस रहे, ठीक है, और ये वेरिएबल रहे, सिर्फ ये दो ये ब्रेसेस और डेटा। उसके बाद मैं ब्रेसेस लिख सकता हूँ और ये काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। और अगर मैं ये ब्रेसेस भी हटाऊँगा तो फिर मैं यहाँ पे एक ही लाइन लिख सकता हूँ। तो जब मैंने फ़न भी हटाया, फंक्शन भी हटाया, जब मैंने फ़न हटाया वो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये जो कॉल है, कॉल ही नहीं की, और फ़न लिखने की ज़रूरत ही नहीं है अब। जब मैंने फंक्शन हटाया तो ये बोलने के लिए कि ये फंक्शन है, तो उसके लिए इसके साथ एक एरो लगाना पड़ेगा, जो ये यहाँ पे ये वाला पेरेंसिस है फंक्शन डेफिनेशन का, उसके साथ एरो लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप ब्रेस लगा सकते हो। अगर आप ब्रेस भी हटाना चाहते हो तो फिर आपका स्टेटमेंट यहाँ पे है। अगर एक चीज़ है, लेकिन अगर आपने ब्रेस लगाया और आप रिटर्न कुछ करना चाहते हो, देन यू हैव टू राइट एक्सप्लिसिटली रिटर्न, वरना रिटर्न नहीं होगा। लेकिन अगर आपको यहीं पे लिखना है तो वहाँ पे, यहाँ पे आपको रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपने एरो लिखा और यहाँ पे रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ए प्लस बी कर रहा हूँ, वो यहाँ पे रिटर्न ए प्लस बी लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपने ब्रेस लिखा तो ब्रेस में आपने स्कोप कर दिया ना, तो उसमें आपको रिटर्न ए प्लस बी करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आई? तो Yes, sir. ना आप फंक्शन लिख रहे हो, ना फंक्शन का नाम लिख रहे हो, ना ही कॉल लिख रहे हो, आप सिर्फ पेरेंसिस लिख रहे हो। जो कि फंक्शन का पेरेंसिस था डेफिनेशन का, सिर्फ वो लिख रहे हो। और ब्रेस भी हटा सकते हो, या ब्रेस में जो फंक्शन का काम है वो कर सकते हो। अगर ब्रेस भी हटाना चाहते हो तो फिर वो यहीं पे ये इस पे कर सकते हैं ना। तो दिस इज कॉल्ड एज एरो फंक्शन। भी हम बता चुका हूँ, मैं फिर से आपको कॉन्सेप्ट सीमेंट कर रहा था इस चीज़ कॉन्सेप्ट को। अब वो ब्रेस अगर सिंगल वैल्यू है ना, तो ब्रेस भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक और चीज़ इसमें ऐड करते हैं। यानी कि आपने कहा कि एरो फंक्शन हम लिखेंगे ऐसे, फिर लिखेंगे एरो, और फिर जो काम करना है जैसे ए प्लस बी, दिस एक्चुअली मीन्स रिटर्न ए प्लस बी। This actually means what? So this is equivalent to calling some function fun, then writing that function and fun name, and having that variable. Say for example here was a d, this is d here, and then say return a plus b। इस सब की जगह जो ये लंबा चौड़ा कॉल है, कॉल लिखा, फिर फंक्शन डिफिनेशन किया, और वेरिएबल यहाँ लिखा, और फिर रिटर्न किया, ये सब ये लाइन सिंगल लाइन ऑफ कोड काम करेगी, है ना। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, ए डी एंड बी, व्हाटएवर आपके पास है वेरिएबल्स, तो फिर आपको पेरेंसेस लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर पास सिंगल वेरिएबल है, यहाँ पे खाली डी है, तो पेरेंसेस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें खाली हम डी बोल सकते हैं, डी एरो ए प्लस बी। दिस इज इक्वल टू दिस थिंग, the same thing, call, function definition, and this and all that. So you have to write only d arrow a plus b. Clear? हाँ जी, एरो फंक्शन क्लियर हो रही है अभी? Yes, sir. ओके, हम जितना आगे आगे बढ़ेंगे उतना क्लियर होता जाएगा चीज़ें। अच्छा जी, तो ए डॉट फॉर ईच जो है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें, अब मुझे फन वन लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे डायरेक्ट जो वेरिएबल था कि जो मेरा यहाँ पे मैं वेरिएबल लिखूँगा नेम। यानी कि फ़र्ज़ कीजिए मैंने जो फंक्शन को कॉल की, उसमें भेजा मुझे वेरिएबल, मैंने पैरामीटर लिखा नेम, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे नेम, ठीक है ना, फिर एरो। क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो मैं नेम को या तो पेरेंसेस दे सकता हूँ, अगर आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि फॉर ईच जो है वो 3 चीज़ें इसको भेजेगा ना। वो एक तो ये जुनी भेजेगा, वो इस नेम में गया, ठीक है, फिर इंडेक्स भी भेजेगा, और एरे भी, फुल एरे भी भेजेगा। फिलहाल मैं सिर्फ डेटा पे काम कर रहा हूँ। जो डेटा भेजेगा, पहला आर्गुमेंट होता है, जो पहला बॉक्स के अंदर जो पहला वैल्यू है वो जाएगा नेम के अंदर।
चूंकि ये एक ही है तो मुझे इसका पेरेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं रिटर्न करना चाहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ओके, और जो ये नेम मैंने भेजा इस फंक्शन को, नेम डॉट टू अपर कर रहा हूँ मैं, टू अपर केस, ठीक हो गया। टू अपर केस मेथड जो ना, आई हैव टू यूज द पेरेंट्स स्ट्रेट। नाउ इफ आई गिव इट अ गो, देयर इज एन सिंटेक्स एरर, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। मैंने गलत क्या कहाँ पे किया, एक मिनट, मैंने कहा ए आर डॉट फॉर ईच, फिर नेम कहा हमने, और फिर मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग, Console S. कंसोल SON कंसोल डॉट लॉग, ठीक है ना। फिर मैंने कहा इसका पेरेंसिस ये है, नेम डॉट अपर केस, ये इसका पेरेंसिस बंद हो गया, लेकिन वो वाला भी तो नहीं किया था ना, वो दूसरा पेरेंसिस नहीं किया था, ये इस कंसोल का पेरेंसिस है ना, एक एक है उसका, ठीक है ना। ओके, नाउ एज यू कुड सी ये काम कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया ना, यहाँ पे मैंने कहा कंसोल पे तू ये कर मुझे, और उनको अपर केस बना, यानी कि जुनी, जुनैद, मुत्तकी, ये बना तू अपर केस, ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे यही चीज़ करूँगा, पहले मैं कमांड की कर, कमांड के, अगर मैं यही चीज़ करता हूँ यहाँ पे, और मैं किसी वेरिएबल में ही डालना चाहता हूँ, आई एम सेइंग से फॉर एग्जांपल रिजल्ट इक्वल्स, शायद रिजल्ट मेरे पास था, मैं रिजल्ट्स लिखूँगा अब, ओके, एंड गिव इट अ गो। ये जो काम हुआ ये इसने किया, कंसोल डॉट लॉग ने, जो इस फंक्शन के अंदर थी, लेकिन रिजल्ट्स अगर मैं कहूँगा रिजल्ट्स, दैट इज अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि फॉर ईच कुछ रिटर्न नहीं करती, फॉर ईच डू नॉट रिटर्न एनीथिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, फॉर ईच रिटर्न नहीं करती कुछ। या अगर मैं इसी चीज़ को लिखता यहाँ पे, जो ये चीज़ था, मैं कंसोल डॉट लॉग नहीं लिखता, कमांड, ये मैं काटूंगा यहाँ पे, कमांड एक्स, और मैं इसको यहाँ पे करूँगा, ठीक है, रिजल्ट भी काटेंगे। मैं चाहता हूँ कि मुझे ये कमांड में कंसोल डॉट लॉग करूँगा, ए डॉट फॉर ईच, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक हो गया ना, ये इसका। तो जब मैं इसको करूँगा ये अनडिफाइंड दिखाएगा, क्यों? क्योंकि ये जो ए डॉट फॉर ईच है उसने क्या काम किया, ये पहले ये वाला सिंटेक्स समझ में आ गया ना, नेम एरो, ये क्या है, ये आ गया Yes, सिंटेक्स sir. समझ, हाँ, Yes, sir. ये Yes, sir. फंक्शन पैरामीटर है पहला वाला, है ना, और ये फंक्शन की बॉडी, ये फंक्शन पैरामीटर है, और ये फंक्शन की बॉडी, है ना। ये जो ये नेम है, ये जो फंक्शन आप लिखते हो, उधर कोई वेरिएबल लिखते हो ना, फंक्शन फन, उधर वेरिएबल लिखते हो नेम, ठीक है, फिर उसमें आप काम करते हो नेम डॉट टू अपर केस, ठीक है ना, इट इज़ लाइक दिस। और जब फॉर ईच आपने किया, वट एवर द नेम इज एरे का, ए आर डॉट फॉर ईच, वहाँ पे आपने इस फंक्शन को कॉल की हुई है। तो फॉर ईच में हर डब्बे के लिए, हर ब्लॉक ऑफ द एरे के लिए इस फंक्शन को कॉल होगी, यहाँ जाएगा, वहाँ पे पहला वैल्यू जो है वो नेम में डालेगा, और नेम डॉट टू अपर केस कर रहे हो फिर आप, ठीक है ना। अब आप जो है, और ये नेम डॉट टू अपर केस रिटर्न हो रहा है, क्योंकि आपने जब यहाँ पे लिखा इट इज़ रिटर्निंग, सो इट इज़ एज गुड एज राइटिंग रिटर्न नेम डॉट टू अपर केस। हालांकि आप लिखो रिटर्न या मत लिखो, ठीक है। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूंगा कि कैन आई कॉपी दिस, इफ आई पुट इट हियर, आई एम सेइंग कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, ध्यान से समझ में क्या कर रहा हूँ, ए आर डॉट फॉर ईच, ओके, वहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेम जो मैंने पास किया, उसके बाद मैंने एक एरो फंक्शन कर दी, ओके। एरो फंक्शन में आप एक काम करो, आप यहाँ पे ऐसे लिखो एरो फंक्शन, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पे आप इसको रिटर्न करो, क्योंकि मैंने कहा जब ब्रेस होती है तो रिटर्न लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। रिटर्न करो आप जो नेम है डॉट टू अपर केस, यानी कि आप इस बंदे को अपर केस बनाओ, ये पहले जुनी बेचेगा उसको अपर केस बनाओ आप, ठीक है, टू अपर केस करो, और उसको आप रिटर्न करो, और रिटर्न किसको हो जाएगा, कंसोल को, और कंसोल को चाहिए कि वो उसको प्रिंट करे कमांड के, और कंसोल को क्या चाहिए कि वो इसको प्रिंट करे, लेकिन
जो फॉर ईच है, इट विल नॉट रिटर्न इवन दो यू राइट रिटर्न, इट इज़ नॉट गोइंग टू रिटर्न एनीथिंग। डू यू अंडरस्टैंड? तो इसलिए इस सूरत में अगर हम चाहते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वो रिटर्न भी हो, मे बी वी वॉन्ट टू असाइन इट टू सम अदर गाय, ओके, क्योंकि ये जो है आप जब नेम डॉट टू अपर केस आपने किया, आपने उस एरे पे काम किया, उसको अपर केस तो बनाया आपने, ठीक है ना। लेकिन मसला ये हो गया कि अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं उस एरे पे तो ठीक है, लेकिन मुझे वो किसी और जगह ज़रूरत है, मुझे वो जो चीज़ हो रहा है मुझे किसी और एरे में डालनी है, मुझे रिटर्न करना है, तो ये रिटर्न करके नहीं देगा। तो उसके लिए हम आपके पास है मैप। अगर इसकी जगह आप मैप करोगे, ठीक है, इनफैक्ट आपको इतना लंबा चौड़ा सिंटेक्स लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ब्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ब्रेस भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम वहीं पे लिखेंगे, ये सिंगल लाइन ऑफ कोड है, तो यहाँ पे लिखो कॉम्पैक्ट बनाओ इसको, ठीक है। और ये अपना जो आपका है ब्रेसेस, एक तो इसको कंसोल लॉग का है और दूसरा ये है, ठीक है ना। अब इसको आप यू गिव इट अ गो, इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। वाई? बिकॉज ए आर डॉट मैप और फॉर ईच में यही फ़र्क है कि ये आपको क्या करके देता है, हाँ जी, रिटर्न। ये आपको रिटर्न करता है, ठीक है ना। अगर आप ये किसी वेरिएबल में मान लीजिए डालना चाहते हैं, कंसोल डॉट लॉग नहीं करना चाहता मैं यहाँ पे, मैं किसी एक और एरे बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, आई एम सेइंग रिजल्ट और ई एस कहूँगा मैं अब, इक्वल्स टू ए आर डॉट मैप, ये इसका ब्रेस आ गया वापस यहाँ पे, है ना। एंड आई जस्ट वाना कंसोल डॉट लॉग कमांड के, आप इतना कर लो पहले, ठीक है। अब आर ई एस देखो, आर ई एस में वो चीज़ें आ गई हैं जो आपको चाहिए थी, ठीक है ना, क्योंकि आपको चाहिए था कि जो आप काम कर रहे हो यहाँ पे वो आप फ़र्ज़ कीजिए मैं इसको कहूँगा टू लोअर केस, ठीक है, पहले अपर था, लोअर केस करेंगे अब, अनकॉट एरर आ गया, कुछ गड़बड़ हो गया, केस 2 कमांड के, ये रहा आपका लोअर केस में। अगर आपका जो ए आर आप प्रिंट करोगे दैट इज़ लोअर केस, और अगर आप आर ई एस प्रिंट करोगे वो भी लोअर केस है, क्योंकि जो आपका मैप है और जो आपके ये फंक्शन किया आपने, ये उस एरे पे आपने काम किया जो आपकी एरे थी, और लेकिन रिटर्न भी हो गया, वो कहाँ पे गया, आर ई एस में। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? हाँ जी। यस सर, यस सर। सो एक ही फ़र्क है कि अगर आप रिटर्न करना चाहते हो तो कमांड के, तो आपको मैप करना पड़ेगा, वरना सेम है वही। एक और चीज़ है कि जिसे हम कहते हैं फ़िल्टर। क्या कहते हैं? फ़िल्टर। फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास एक एरे है और मैं उसमें उसका सम करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एरे है, इसमें भी वी हैव कॉन्स्टेंट नम इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 व्हाटएवर 7। ये मेरे पास एक एरे है और मैं चाहता हूँ कि मैं इनका सम करूँ। अब मैं अगर मैं इसमें फॉर ईच में करूँगा, हम ताकि इसमें देखें फॉर ईच और जो फ़िल्टर में है वो कितनी कम्पैक्ट कोड बनाएगा हमें, और अगर हम वही काम फॉर ईच से करेंगे तो हमें कितना लंबा, पहले हम फॉर ईच से करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इन सब का एक सम करूँ, ठीक है। आई वॉन्ट नहीं, फ़िल्टर में हम ऐसा काम करेंगे कि मैं चाहता हूँ कि मैं फ़िलहाल मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें से कौन है जो कि 3 से बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल आई वांट सी विच नंबर इज़ ग्रेटर देन 3, ओके, और वो नंबर्स की मैं एक एरे बनाना चाहता हूँ, वो भी फॉर ईच से। तो फॉर ईच में एक बात याद रखनी है कि मुझे रिटर्न कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले हम एक यहाँ पे एक एरे बनाएंगे, const const एरे, ओके। मैं एक रिज़ल्ट वाली एरे बना रहा हूँ, वो भी खाली रख रहा हूँ फ़िलहाल। अगर मुझे फॉर ईच से करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा अब क्योंकि मुझे रिटर्न कुछ नहीं हो रहा इसमें से, अगर मैं फॉर ईच करूँगा तो मैं फ़िलहाल नम पे लगाऊंगा फॉर ईच, नम डॉट फॉर ईच, पता नहीं इसने क्यों नहीं लिखा, कुछ गड़बड़ किया हमने, ये देना चाहिए था ना हिंट, नम डॉट फॉर ईच, वो देखेंगे। अब मैं पकड़ूंगा फॉर एग्जांपल डेटा के अंदर जो आ रहा है, पहले 1 आएगा डेटा में, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, एंड सो ऑन। आई कैन यूज़ द एरो फंक्शन हियर, ओके, and then I will put up the brace, I will write in a brace,
व्हाट शैल आई से कि भाई मुझे वो बंदा चाहिए कि अगर वो क्या है, अगर वो 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, तो वो मुझे इस एरे में भरना है, रिजल्ट एरे में भरना है। तो आई विल यूज द इफ सिंपली। इफ जो बंदा आया वो किस में है, डेटा में है ना। जो पहला 1 है वो किस में आया होगा, डेटा में, फिर 2 डेटा में आया होगा। इसको आप लिख सकते हो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इसको ब्रेस लिख सकते हो, क्योंकि ये मेथड था वो। लेकिन मैंने आपसे कहा कि अगर सिंगल वैल्यू है तो लिखने की ज़रूरत, ब्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर सिंगल आर्गूमेंट है। तो 1 आया पहले डेटा में, तो मैं देख रहा हूँ क्या ये डेटा ग्रेटर देन 2 है, ठीक है ना। अगर है तो फिर आप क्या करोगे काम, आप इस रिजल्ट में RESULT में मैं डालना चाहता हूँ ये 2, कैसे करूँगा, कौन सा ऑपरेशन लगेगा इसका, एरे का भी अभी दिखाया था ना हमने, रिजल्ट डॉट पुश। पुश। वेरी गुड, पुश कर सकते हैं हम। किसको पुश करेंगे, डेटा को, सीधी डेटा। सी बात है ना। ओके ओके। सो फिर लास्ट में जो है, देखो पहले 1 आएगा डेटा में, क्या 1 बड़ा है 2 से, नहीं है, तो ये इफ लूप ये इफ ब्लॉक चलेगा ही नहीं। फिर 2 आएगा, क्या 2 बड़ा है 2 से, नहीं है, तो ये इफ ब्लॉक चलेगा नहीं। 3 आएगा, तो क्या 3 बड़ा है 2 से, हाँ है, सो रिजल्ट और पुश डेटा में डालेगा। फिर 4 आएगा, वो भी इससे बड़ा है, उसके लिए काम करेगा। 5 6 7 सब के लिए काम करेगा। फिर हम कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और क्या करेंगे कंसोल डॉट लॉग, जो मेरी रिजल्ट है RESULT, रिजल्ट एरे जो में है, मैं देखूंगा उसमें क्या है। अब इफ़ आई गिव इट अ गो, उसमें 3 4 5 6 7 है रिजल्ट में, है ना। बात में आई, जो ग्रेटर देन 2 थे, ये समझ में आ गया। यस सर। अब अगर मैं, ये लंबा चौड़ा किस्सा है, मुझे शॉर्ट करना है इस चीज़ को, मैं इसको कमेंट आउट करूंगा, ठीक है। आई वांट डू इट इन जस्ट ए 1 लाइन, सो मेरे को फिल्टर लगेगा। मुझे क्या लगेगा, फिल्टर। मैं क्या कहूँगा काम, कि जो मेरी ये रिजल्ट है, और in fact you don't need to even create an array here, you can write it in a one go all, you can say कि रिजल्ट आपके पास एक array है, ठीक है, और उस रिजल्ट को क्या करोगे आप, क्योंकि जो फिल्टर है वो रिटर्न भी करता है, फॉर ईच रिटर्न नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे वो पुश करना पड़ता था, क्योंकि मुझे रिटर्न, अगर ये रिटर्न करता तो मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड इसको रिजल्ट लिखता, जैसे मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिखा तो ये रिटर्न करके उसमें जाता, लेकिन जबकि फॉर ईच तो रिटर्न कर ही नहीं रहा, सो मुझे ये काम नहीं करेगा। तो मैं क्या कहूँगा, रिजल्ट इज इक्वल टू, ओके। अब मैं जो मेरी नम एरे है उसमें मैं लगाऊंगा डॉट फिल्टर, क्या लगाऊंगा, डॉट फिल्टर। रिजल्ट में मैंने क्या लगाया, डॉट फिल्टर, ओके। अब इस फिल्टर में बिल्कुल फॉर ईच की तरह है कि आपको चीज़ें आएंगी, ठीक है, और वो आप पकड़ोगे, जैसे मैंने डेटा में पकड़ा है, ठीक है। उसके बाद आप उसको एरो फंक्शन लगाओगे। आप करना क्या चाह रहे हो, कि मैं कह रहा हूँ कि रिटर्न करो n अगर ग्रेटर देन, मैं इस वक्त 3 कहूँगा ताकि वो डिफरेंट आए जो इससे पहले किया था। डेटा अगर ग्रेटर है, अगर n नहीं, n कहाँ से आ गया, डेटा है ना, डेटा अगर ग्रेटर है 3 से, अगर डेटा ग्रेटर देन 3 है तो वो रिटर्न होगा और पास होगा रिजल्ट में। अगर डेटा ग्रेटर देन 3 नहीं है तो वो रिटर्न नहीं होगा। दिस इज़ हाउ फिल्टर वर्क्स, ठीक है ना। तो अगर आप बाद में रिजल्ट देखोगे, जस्ट गिव इट अ गो, तो आपके रिजल्ट में यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया मैंने, या ऐसा रिजल्ट ऑलरेडी रिजल्ट लिखेंगे हम, डिफरेंट वेरिएबल, ओके, क्योंकि पुराना रिजल्ट था ना वो कांस्टेंट था। तो अब देखिए इसमें 4 5 6 7 आ गया जो ग्रेटर देन 3 है। तो ये जो इतना सारा काम आपने किया 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स में जो आपने किया, यहाँ पे आपने सिंगल लाइन में फिल्टर से काम किया, ठीक है जी। हाँ जी, ये समझ में आ यस गया, सर। ये सिंटेक्स समझ आ रहा है। यहाँ पे जो एरो फंक्शन मैंने किया यहाँ पे, यस सर। मुझे लिखा कॉन्टेक्स्ट फंक्शन, लिखा मैं खुद किया कि पहले फंक्शन लिखो, फिर फंक्शन डेफिनेशन लिखो, फिर पास ऑन करो। इवन हम इसका ब्रेस भी हटा रहे हैं क्योंकि ये सिंगल वैल्यू है ना। तो यस सर। इसका ब्रेस भी हमने, ये ना ब्रेस नहीं, आई मीन पेरेंसेस, वी डोंट इवन राइट द पेरेंसेस। तो ये एरो समझ आ गया ना, ये फंक्शन की बॉडी है, ये फंक्शन का जो आपने उसमें ये दिया, जो आर्गुमेंट पास किया आपने, ये समझ में आ गया ना, यस सर। ठीक हो गया। तो ये फिल्टर है जिसने आपका काम बड़ा आसान कर दिया कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि अगर आपने यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया, ब्रेस में लिखा, मतलब आप ब्रेस में भी लिख सकते हो ना, एक लाइन में नहीं लिख सकते हो,
तो फिर ये जो अगर हम काम करेंगे इसको, अब जस्ट गिव इट अ गो, तो अनएक्सपेक्टेड कुछ मसला हो गया पहले। पेरेंट्स इसका यही वाला ये क्या जावा था, अच्छा इशू की है, लास्ट में देना है। ये देना है यहाँ पे है ना, और यहाँ टर्मिनेटर। ओके, नाउ यू सी हियर कि एरे एम्प्टी है। एरे क्यों एम्प्टी है बताओ इसका आंसर जल्दी। रिटर्न कुछ नहीं हो रहा। वेरी गुड, वाई? क्योंकि अगर आपने ब्रेस में लिखा तो आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली यू हैव टू राइट रिटर्न। ठीक है, अगर आपने ब्रेस नहीं दी, ठीक है ना, अगर आपने ब्रेस नहीं दी तो आपको रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो खुद ही ऑटोमेटिक रिटर्न होगा। ये कंडेंस्ड फॉर्म में होगा, कंडेंस्ड फॉर्म में आपको रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें गड़बड़ हो गई, ये करना है यहाँ पे और ये लेना है यहाँ पे, है ना। नाउ इट विल वर्क फाइन। नाउ दिस टाइम अनकॉट एरर फिर से आ गया, क्या मसला है? डेटा इज इक्वल डेटा ग्रेटर देन 3। अब एरर कहाँ पे है? रेफरेंस एरर है, वो रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड मत है। आदमी सोचो ना, वो तो वैर है, वो तो वो था ना, रिजल्ट थी वो कांस्टेंट था, इसलिए ना ये बनाया था ना हमने कांस्टेंट, इसको चेंज नहीं कर पा रहे थे। यहाँ रिजल्ट्स है ना हमारे पास। सर एरो इसका, हाँ, एरो का ये खत्म है, ठीक है। इससे पहले वो रिजल्ट, जो रिजल्ट थे ना वो कांस्टेंट रही थी, एक बार बनाई फिर उसको चेंज नहीं कर सकते थे। यहाँ पे रिजल्ट्स है ना, ये वैर है, ये एज अ वैर है ना, सो वी कैन री डिक्लेयर इट, नो इश्यूज विद दैट। सो नाउ इट इज गिविंग प्रॉपरली, गेटिंग। एक और हमारे पास है व्हाट इज कॉल्ड एज एन रिड्यूस। अगर हम सर ये जो फिल्टर आपने लगाया ना, यस, डेटा ग्रेटर देन 3, ये बूलियन रिटर्न करता है। ये बूलियन रिटर्न नहीं करता है, ठीक है, ये इस डेटा को रिटर्न करता है अगर ये कंडीशन ट्रू है। वही ये कंडीशन है ना, मतलब कि ट्रू या फॉल्स। देखिए, मगर रिटर्न मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो ना रिटर्न, ठीक है सर, कंडीशन अगर ट्रू है तो ये डेटा रिटर्न होगा इसमें। ठीक। अगर कंडीशन फॉल्स है ये स्किप होगा वो वाला डेटा। यानी कि हमारे पास एरे थी 1 2 3 4 5, मैं कह रहा हूँ क्या डेटा ग्रेटर देन 3 है, क्या 1, पहले 1 आएगा ना डेटा में, आएगा ना। अब ये डेटा जो 1 है, क्या 1 ग्रेटर देन 3 है? नो, false, so it will not return, it will skip. Okay, now it will go to the next block 2, it will put 2 into the data. now function body में हम कह रहे हैं कि क्या 2 data greater than 3 है? नहीं है, so it will skip, it will not return, again it will not return। ठीक है, अब 3 आ जाएगा, क्या 3 greater than 3 है? नहीं है, तो 3 भी, 3 के लिए भी रिटर्न नहीं होगा। now when 4 is there, when 4 comes in into the data, किसमें आएगा? डेटा में आएगा। फिर हम फंक्शन बॉडी में लिख रहे हैं कि क्या 4 ग्रेटर देन 3 है? हाँ है। नाउ दिस 4 डेटा विल बी रिटर्न्ड टू द रिजल्ट्स, तो रिजल्ट एरे बनेगी, उसमें पहला बंदा जो होगा वो कौन होगा? 4, एज यू कुड सी हियर, राइट। इसलिए फिर 5 पे काम होगा, 5 भी बड़ा है तो 5 रिटर्न होगा, फिर 6 भी रिटर्न होगा, फिर 7 भी रिटर्न होगा। ठीक आ गया समझ? यस सर। ई कॉमर्स वेबसाइट में तो यही चीज़ें आपको करनी है ना, आप फिल्टरिंग करते हो ना वहाँ पे, यस सर। ताकि फिल्टरिंग दो है ज़रूरत। इसी तरीके से आपको रिड्यूस है, ठीक है। रिड्यूस में क्या होता है कि आप चाहते हो कि जो हर एक एलिमेंट पे काम हो के आपको एक सिंगल वैल्यू मिले, जैसे आपको इस सब का सम करना है, ठीक है ना, तो एक सिंगल वैल्यू आप चाहते हो आपको मिले, ठीक है ना। वो कर लेते हैं मेरे ख्याल से, आज मैं सोच रहा था मैं एक कल करूँगा लेकिन करेंगे आज। यानी कि मैं इसको काट ही देता हूँ आपसे सारा। हमारे पास एक नम एरे है 1 2 3 4 5 6 और 7, और मैं चाहता हूँ कि मैं एक वेरिएबल रखूँगा, फॉर एग्जांपल सम, ओके, इक्वल्स टू, और मैं इसको कहूँगा क्या नाम है इसका, नम डॉट रिड्यूस। ओके, जो रिड्यूस है अगेन वो वैसे ही काम करेगी, लेकिन इसमें आपके पास दो चीज़ें होती हैं। जो रिड्यूस है इसमें क्या होती हैं? दो चीज़ें। एक होता है आपके पास जिसमें आप वो सिंगल वैल्यू जो आप चाहते हो ना कि सिंगल वैल्यू आ जाए और वो फिर उसके ऊपर काम हो वगैरह, तो इसमें वो एक्यूमुलेटर का कहते हैं उस चीज़ को हम, कमांड ए। एक दो चीज़ें यहाँ पे होती हैं, एक एक्यूमुलेटर होता है और एक होता है करंट वैल्यू।
ठीक है। एक्यूमुलेटर हम इसको बताते हैं कि कहाँ से शुरू करना है आपको। सो से फॉर एग्जाम्पल सेट जीरो, वो इसको एक्सप्रेसली हम बताते हैं, यहाँ सिंटेक्स में बताऊंगा मैं, वहाँ जीरो रखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल अगर जीरो तो है तो इसमें इनिशियली जीरो है। अगर आपने 100 रखा, 200 रखा, 550 रखा, तो इनिशियली इसमें 50 होगा एक्यूमुलेटर में। तो फिलहाल मैं रखूँगा इसमें एक्यूमुलेटर में जीरो, तो यहाँ पे जीरो है। अब करंट वैल्यू जो एरे से आएगा बंदा 1, वो इसमें चला जाएगा। अब ये 1 ऐड होगा ज़ीरो के साथ। वो कैसे होगा? क्योंकि आप कहोगे फंक्शन के अंदर कि भाई आप एक्यूमुलेटर प्लस जो एक करंट वैल्यू है इसको ऐड करो और वो रिटर्न करो, या आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, इसमें डिस्काउंट निकालना चाहते हो, या बहुत सारी क्या करना चाहते हो आप उस बंदे के साथ, इस एक्यूमुलेटर के साथ वो होगा वो चीज़, और उसके बाद वो रिटर्न होगा। ठीक है। और रिटर्न कहाँ होगा? रिटर्न नहीं होगा सम के अंदर पहले ही, नो, वो एक्यूमुलेटर में जमा होगा। यानी कि होगा क्या, जब पहले मैं लिखता हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। कि मैं यहाँ पे लिखूँगा भाई साहब, एक तो आपके पास एक्यूमुलेटर है, AC लिखूँगा मैं इसको, और एक आपके पास करंट वैल्यू है, CV है, करंट वैल्यू है आपके पास, ठीक है। एक्यूमुलेटर है और आपके पास क्या है? करंट वैल्यू है। फिलहाल मैं इसको लिखूँगा ब्रेस में, फिर हम लिख सकते हैं ब्रेस के बगैर भी, वो आपकी मर्ज़ी है अगर आप ब्रेस के बगैर लिखना चाहते हो, ठीक है ना। क्योंकि मैं पहले दिखाऊँगा ना इसमें कि हो क्या रहा है। ये आपका ब्रेस है, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ है ना, तो इसका अपना पेरेंसिस चाहिए होगा, ठीक है। और ये वाला पेरेंसिस जो है, पहला वाला पेरेंसिस है, वो यहाँ पे क्लोज होगा, ठीक। तो एक्यूमुलेटर और CV, ये दो चीज़ें हैं इसके पास। क्योंकि दो चीज़ें हैं तो इसका अपना पेरेंसिस लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे देखो, मैं ओवरऑल तो मैं रिटर्न करूँगा, आई विल रिटर्न, ओके, व्हाट आई विल रिटर्न, दिस एक्यूमुलेटर प्लस CV, सीधी सी बात है। और जब यहाँ पे आपने ब्रेस ख़त्म किया, वहाँ पे आप ज़ीरो कहोगे, जो इनिशियल वैल्यू आपको लिखना है एक्यूमुलेटर का, वो इनिशियल वैल्यू यहाँ लिखोगे आप, ठीक हो गया। अब अगर इसको हम सम को लास्ट पे कंसोल, पहले देखो मैं चल रहा है कि नहीं चल रहा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। कंसोल डॉट लॉग, यार क्या कर रहा हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग सम, मैं वरना सम को मैं चाहता हूँ कि मैं प्रिंट करूँ कि सम क्या है। कमांड A, कमांड K यार, ओके। नाउ इफ़ आई गिव इट अ गो, इट्स टेलिंग मी इट्स 28, सो इसने सम अच्छे से किया, इसने बताया कि 28 है, ठीक है, प्रॉपरली इसने सम किया। अब हो क्या रहा है ये इसको देखते हैं। यहाँ पे मैं पहले वो कंसोल, मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा ताकि आपको वैल्यूज़ पता चले। कंसोल डॉट लॉग बैक टिक्स में लिखें, ठीक है, ताकि इवैल्यूएट ना करना पड़े कि पहले जो आपका एक्यूमुलेटर का वैल्यू है, ACC जो आपका है, उसका क्या वैल्यू है, और इंटरपोलेट करें डॉलर, मैंने समझाया था इंटरपोलेशन करते हैं हम यहाँ पे, जिस तरह %D हम वहाँ C में करते थे, यहाँ पे आप AC लिखें कि AC का क्या वैल्यू होगा उस वक्त, और उस वक्त एंड मैं कहूँगा कि उस वक्त इसका CV का क्या वैल्यू है ना, करंट वैल्यू, करंट जो वैल्यू है वो कितना है। CV जो आपका है उसको इंटरपोलेट करें आप यूजिंग द डॉलर साइन एंड लिखें CV, ठीक हो गया, समझ आ रहा है। तो एक तो ये आपका करंट वैल्यू देगा कि उस वक्त क्या था, और ये ठीक। अब हम इसको रन करेंगे, कमांड K, देखिए इसको रन करें, ये थोड़ा सा ऊपर करेंगे हम, गिव इट अ गो। देखिए पहले एक्यूमुलेटर का वैल्यू ज़ीरो था, ध्यान से देखिए क्योंकि आपने यहाँ पे ज़ीरो लिखा, इसलिए एक्यूमुलेटर का वैल्यू इसकी तरफ देखो, इसमें एक्यूमुलेटर का वैल्यू ज़ीरो था, और एरे से इसने 1 लाया, वो करंट वैल्यू में गया। करंट वैल्यू में एरे से जो बंदा आया तो वो कमांड है, देखिए जो 1 है, जो 0 है, वो एक्यूमुलेटर का इनिशियल वैल्यू है, देखिए, और जो करंट वैल्यू है वो यहाँ से आया, इट हैज़ गॉन इनटू द CV, और ये करंट वैल्यू है। अब इसने 0 एंड 0 + 1 किया इसने, और वो चला गया आपको एक्यूमुलेटर में। इट इज़ एक्चुअली AC इज इक्वल टू एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू। एक्यूमुलेटर में इनिशियली 0 था और 1 था, 0 + 1 चला गया एक्यूमुलेटर में, देखो अब नेक्स्ट बार जो है एक्यूमुलेटर में 1 है, ठीक है ना, और यहाँ से आ गया 2, ठीक है ना, एरे से क्या आ गया 2। अब 2 आपके CV के अंदर 2 है, और एक्यूमुलेटर जो आपका है ना, 1 सेकेंड, जो आपका एक्यूमुलेटर यहाँ पर आप देखो उसमें 3 आ गया है, क्योंकि 2 + 1 किया था, वो एक्यूमुलेटर में जमा हो रहा है। जो आप काम कर रहे हो यहाँ पे, जो आप रिटर्न कर रहे हो, वो रिटर्न सम के पास नहीं जा रहा,
वो अभी इसी में ये इधर ही चल रहा है, रिड्यूस इसको अपने पास ही ले रहा है, और लास्ट में जब ये ख़त्म हो जाएगी, सारा एरे ख़त्म हो जाएगी सारी, तब एक्यूमुलेटर रिटर्न होगा एंड इट विल बी स्टोर्ड इनटू द सम। यहाँ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, अगर हम ये फॉर ईच से लिखेंगे तो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखना पड़ेगा, बहुत सारी लाइंस लिखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो पहले सम करो, उसके बाद जो है लास्ट में जो है तो लूप लगानी पड़ेगी, और फिर वो सम को देना पड़ेगा एंड ऑल दैट। तो यहाँ एक्यूमुलेटर इनिशियली 0 था, तो 0 आ गया, फिर CV में पहला एरे का एलिमेंट आ गया करंट वैल्यू, और उसको इन दोनों ने ऐड किया और उसको रिटर्न किया। रिटर्न कहाँ गया? रिटर्न नहीं गया, बल्कि वो एक्यूमुलेटर में घुस गया, वो AC में घुस गया, और AC में अब इन दोनों का सम घुस गया। उसके बाद नया वैल्यू 2 आ गया, फिर 2 और एक्यूमुलेटर को फिर से सम हो रहा है, एक्यूमुलेटर को और करंट वैल्यू को सम हो रहा है, दैट इज़ दिस लाइन ऑफ कोड, ठीक है ना। यहाँ पे अब 3 वहाँ से आ गया, 3 एक्यूमुलेटर में था, बन गया 6, तो वो कहाँ पे जमा हो गया? एक्यूमुलेटर में। नया वैल्यू आ गया 4 यहाँ से, और उसने 6 + 4 किया इस लाइन ऑफ कोड से। जब ये 6 + 4 हो गया 10, वो कहाँ किस में गया? वो एक्यूमुलेटर में गया, वो रिटर्न नहीं हो रहा, अभी एक्यूमुलेटर में जा रहा है। और उसके बाद जो नेक्स्ट एरे आ रहा है 5, उसको ऐड करके 15 एंड फिर 6 आ गया, फिर 7 आ गया, 21 + 7 = 28। जब ये लास्ट हो गया, एरे ख़त्म हो गई, अब एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू है दैट इज़ हाउ मच? हाँ जी, दैट इज़ 28. नाउ दैट 28 जो लास्ट का वैल्यू है वो रिटर्न होगा इनटू द सम, ठीक है। अब आप जो कंसोल डॉट लॉग सम कर रहे हो वो 28 दे रहा है, वो 28 दे रहा है यहाँ पे। बात समझ आ गई? Yes, sir. तो एक ये ज़बरदस्त चीज़ है जो रिड्यूस है, ये जो आपने लिखा नम डॉट रिड्यूस, ये एक ज़बरदस्त चीज़ है जो कि हमें काम करवाती है। अगर इसको हम और शॉर्ट करवाना चाहते हैं, अगर मैं ये नहीं चाहता हूँ ना कि ये वैल्यूज़ मुझे नहीं चाहिए अभी, अगर मैं ये नहीं चाहता हूँ, ठीक है, इफ़ आई गिव इट ए गो कमांड के, मुझे खाली ये चाहिए, सम चाहिए लास्ट में, मैं कहूँगा यहाँ पे लाइक दिस सम इक्वल्स टू, कनकैट करें उसको, सम ये मुझे चाहिए, जैसे इस तरीके से यहाँ पे आएगा सम इज 28 कमांड के, मैं इसको शॉर्ट में लिख सकता हूँ। तो आपको ब्रेस भी लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे ब्रेस की, यहाँ पे पेरेंट्स की ज़रूरत है क्योंकि 2 वैल्यूज़ है ना, तो एरो के बाद आप ब्रेस हटाना चाह रहे हो, तो मैं ब्रेस को हटाना चाह रहा हूँ, ठीक है। रिटर्न तो खुद भी हटेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका मतलब ही है कि रिटर्न करो AC + CV, है ना। उसके बाद लेकिन ये 0 आपको लिखना पड़ेगा कि आपका इनिशियल वैल्यू क्या है इसका, वो कामा करके लिखो, ओके। और पेरेंसिस तो लिखना पड़ेगा इसका, जो रिड्यूस का यहाँ ये वाला पेरेंसिस क्लोज यहाँ पे, एंड दैट इज़ इट। यू कैन डू इट इन वन लाइन ऑफ कोड, जो अभी हम कर रहे थे। कि देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड कोड है, वो एक लाइन में हम लिख रहे हैं कि हमने क्या किया काम, कि रिड्यूस अगेन इट विल यूज अ कॉल बैक फंक्शन विच इज कॉल्ड फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द एरे, लेकिन जो ये अंदर काम करेगा वो एक्यूमुलेटर में जमा होता जाएगा। जो भी आप ये काम करोगे, मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, सब्ट्रैक्ट किया, क्या किया इसमें, वो एक्यूमुलेटर में जमा होता जाएगा। और इनिशियल वैल्यू इज दिस, यू कुड हैव कॉल इट इनिशियल वैल्यू एज 20, इट डजंट मैटर। सो फिर इनिशियल वैल्यू 20 होगा, तो 20 के बाद आगे ये ऐड होते जाएंगे। तो अगर आप 0 कह रहे हो तो इनिशियली 0 है, तो फिर यही जो एरे के हैं उन्हीं में वैल्यू होगा, ऐड होगा, ठीक है। सो दिस इज इनिशियल वैल्यू, यू कैन राइट इट ऑन अ सेम, सो इफ आई गिव इट सम इज 28 इज गिविंग प्रॉपर्ली, ठीक है। तो जो सारा लंबा कोड था वो एक लाइन में आ गया। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. ये चीज़ें जो रिड्यूस है, फिल्टर है, फॉर ईच भी इस्तेमाल होता है, लेकिन मैक्सिमम जो आपके फ़िल्टर्स हैं या आपके रिड्यूसेस है, ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं आपके अगर ई-कॉमर्स वेबसाइट आपको बनानी है, ठीक है। ओके, Yes, sir. आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क।